Hello students, welcome to online study. Subject English, Standard 8, Chapter 1, The Best Christmas Present in the World. Session 2. Now, my dear students, you already learn about this exercise of Chapter 1 in your first session. Now here is your session 2 about this chapter, the best Christmas present in the world. So here some exercise given here related to chapter. Now let's go toward the true false. First one, say whether the following sentences are true or false. So first one is, inside the tin box there was an envelope addressed to Jim McPherson. Answer is false, because correct statement is like this one: inside the tin box there was an envelope addressed to Mrs. McPherson. So here your answer is false. Second one, the letter was written on the eve of Christmas in 1914. Answer is false, because here year is wrong. Jim McPherson was a teacher by profession before he joined the army. Our statement is true. Fourth number, Hans Wolf's favorite English writer was Thomas Hardy. So Hans Wolf के favorite English writer जो थे वो Thomas Hardy थे. So answer is true. Now Hans Wolf said that winning the football match wasn't quite fair. So correct answer is true. And sixth number, Connie McPherson wants that the narrator should read the letter to her. Connie McPherson ऐसा चाहती थी कि नरेटर है वो उसके सामने लेटर को पढ़े. So correct answer is true. Now here's some question answer given here related to chapter. So answer the following questions in 2 or 3 sentences each. So first question is that how did the author find Jim's letter and what did it contain? राइटर को यानी कि ऑथर को जिम का लेटर कैसे मिला और उसमें क्या कंटेन था? So answer is the author found Jim's letter in a small black tin box put in the drawer of an old table. Jim's letter was addressed to his wife. He was a British soldier, but he was glad to have celebrated Christmas together with the German soldiers. He had narrated the whole event in the letter and promised to come back home before next Christmas. ऑथर है उसने जिम का जो लेटर है वो एक स्मॉल ब्लैक कलर का जो टीन बॉक्स था कि जो टेबल के अंदर बहुत पुराना सा टेबल था उसका एक ड्रॉवर था उसमें एक टीन का बॉक्स रखा हुआ था और वो ब्लैक कलर के टीन बॉक्स के अंदर जिम का लिखा हुआ लेटर है वो उसमें पड़ा हुआ था जो ऑथर को मिलता है. और जिम के वो जो लेटर था उसमें किसको एड्रेस्ड करके यानी कि किसको संबोधन करके वो लेटर लिखा गया था? अपनी वाइफ को यानी कि जिम की वाइफ मिसिस मैकफरसन को एड्रेस करके लिखा गया था. जिम मैकफरसन एक ब्रिटिश सोल्जर था बट उसको बहुत खुशी थी कि वो जर्मन सोल्जर के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है. एंड उसमें वो लेटर के अंदर उसने वो जो जर्मन सोल्जर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहा था उसका पूरा वो इवेंट था उसका नरेशन यानी कि उसको डिस्क्राइब करता हुआ लेटर उसकी वाइफ को लिखा था. और उसने मिसिस मैकफरसन को यानी कि जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ को कोनी को प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस से पहले नेक्स्ट क्रिसमस आएगी उससे पहले वो जरूर से वापस लौट आएगा घर पे. सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हो कि जिम मैकफरसन है वो वॉर से वापस लौटेगा? और हाउ डू यू नो दिस? आपको ये कैसे पता चलेगा? सो हियर योर कन्फर्मेटिव आंसर यू विल हैव टू गिव कि
शायद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जिम मैकफर्सन है वो वॉर से शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा। एंड हम जानते हैं कि ये कॉनी का जो नोट है वो बता रहा था। देयर शी राइट्स दैट द लेटर इन द envelope was the last one received from Jim. The letter was written on December 26, 1914. The war went on for another 4 years. Possibly Jim was killed in action soon after Christmas. कि नहीं, जिम मैकफर्सन है वो शायद वॉर से कभी वापस नहीं लौट पाया था, बिकॉज ये कॉनी का जो नोट मिला हुआ था उससे पता चलता है कि जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि लेटर इन द एनवेलप वाज द लास्ट वन रिसीव्ड फ्रॉम जिम। जिम का ये लास्ट लेटर कॉनी को मिला हुआ था, यानी कि उसके बाद कभी भी कॉनी को आज तक एक भी लेटर जिम से नहीं मिला था। एंड वो लास्ट लेटर की जो लिखी हुई डेट थी वो December 26, 1914 थी, यानी कि लास्ट लेटर जिम ने December 26, 1914 को लिखा था। एंड वॉर है वो तो नेक्स्ट 4 years तक चला था। सो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है मे बी कि जिम है उसकी क्रिसमस के बाद तुरंत ही शायद उसकी डेथ हो चुकी हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद उसने लेटर ना लिखा हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। जिम्स लेटर, सो हियर क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉनी है, आप कितने समय तक, मतलब आपके सोच सकते हो कि कितने समय तक कॉनी है उसने जिम्स का लेटर को रखा हुआ था। उसके लिए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, रीजंस देने हैं। कॉनी ने कितने लंबे समय तक जिम का लेटर रखा हुआ था। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर विथ हर टिल द हाउस वॉज गटर्ड इन अ फायर। शी वुड श्योरली हैव बीन फिट द लेटर्स प्रेजेंस अंटिल द टाइम शी गॉट अ बीट मडल हार्डेड। कॉनी है उसने जिम का लेटर अपने हाउस के अंदर तब तक रखा हुआ था कि जब तक उसका हाउस है वो आग के अंदर जल के ख़त्म हो जाता है, यानी कि आग की ज्वालाओं में आ जाता है, तब तक उसने जिम के लेटर को संभाल के रखा था। यानी कि अपने लास्ट मोमेंट तक कॉनी ने जिम का लेटर संभाल के रखा था और वो श्योर थी कि ये जो लेटर है वो उसके साथ है, तब तक उसके साथ है। शी गॉट अ बीट मडल हेडेड, यानी कि लास्ट दम तक के लेटर है वो उसके साथ में ही रहेगा। Now here is fourth number question. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflict? Do you agree? ऐसा क्यों मानते थे ये दोनों साइड के सोल्जर, जिम एंड हंस वुल्फ, दोनों ऐसा क्यों सोचते थे कि गेम्स और जो स्पोर्ट्स है वो हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या आप ये दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसके साथ आप अग्री हो क्या? दैट इज़ योर क्वेश्चन। नाउ योर आंसर इज both Jim and Hans were soldiers. Both were warm-hearted. They had seen the suffering of war. So, it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. Jim एंड हंस वुल्फ दोनों सोल्जर्स थे। यू नो वेरी वेल दैट एक जर्मन सोल्जर था और दूसरा फ्रीज था, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर था। सो दोनों के जो हार्ट थे वो बहुत वार्मफुल थे, यानी कि बहुत ही काइंड हार्टेड थे दोनों के दोनों, जिम एंड हंस वुल्फ। एंड वो काफ़ी समय तक, यानी कि कई बार वो दोनों के दोनों हैं वो वॉर से गुजरे हुए थे, यानी कि वॉर को सफ़र कर चुके थे। सो ये नेचुरल है, यू नो वेरी वेल दैट कि कोई भी पर्सन को वॉर अच्छा नहीं लगता है, तो ये नेचुरल थिंग है कि वो दोनों के दोनों वॉर को नफरत करते थे, यानी कि युद्ध को, यानी कि लड़ाई करना, उससे वो बहुत ही हेट करते थे, यानी कि नफरत करते थे। तो वो क्या चाहते थे कि कोई भी तरह का जो डिस्प्यूट होता है, यानी कि लड़ाई होती है, उसका कोई ना कोई एक पीसफुल सॉल्यूशंस ज़रूर होता है।
तो उसके नज़र के मुताबिक, उसके नज़रिए से गेम्स और स्पोर्ट है वो शायद काफ़ी गुना अच्छा सॉल्यूशंस है हमारे वॉर के लिए। और वो भी मानते थे कि कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिफ़िकल्टीज़ और कोई भी प्रॉब्लम है, संघर्ष है, उसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। एंड आई ऑल्सो क्वाइट अग्री विद देम, और पर्सनली इसमें अग्री करना है कि हाँ, आप अग्री हो या नहीं हो ये सॉल्यूशन के साथ कि वॉर को स्टॉप करने के लिए दो पार्टी के बीच में अगर गेम खेला जाए तो शायद इसका बहुत अच्छे से समाधान हो सकता है। 5 number question. Jim talks about an incident that had just happened at the front. What was it? जिम जो इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था वो शायद उसके सामने ही हुआ था, एंड वो कौन सा था? So here your answer is England and Germany were at war with each other. Both the armies were in their respective trenches. So either waiting to shoot or trying to avoid being shot at. But on Christmas, a strange development took place. So the German soldiers came out of their hiding places and called out, "Happy Christmas." They were unarmed and they waved a white flag. The British soldiers, led by Captain Jim McPherson, were all too eager to celebrate the festival together. सो इंग्लैंड एंड जर्मनी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ वॉर करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे, और ये दोनों जो आर्मी है वो अपने रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस पे थे, यानी कि अपने बॉर्डर लाइन पे थे, अपनी जो भी हद आती थी उसमें ही थे। तो वो वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे कि आइदर यहाँ से शूट किया जाए या तो ये जो भी शूट करने का जो टाइम है यानी कि एक दूसरे के सामने जो लड़ाई करने का टाइम है उसको अवॉइड किया जाए या तो एक दूसरे को शूट कर दिया जाए। बट क्रिसमस के दिन पे कुछ ऐसा होता है, यानी कि कुछ स्ट्रेंज डेवलपमेंट होता है, यानी कि कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट या तो स्ट्रेंज मोमेंट सडनली उसके सामने आ जाता है। सो जर्मन सोल्जर्स है वो अपने जो भी प्लेस पे छुपे हुए थे वहाँ से वो बाहर आते हैं, और जनरली यू नो वेरी वेल दैट कि वॉर करने के लिए जाते हैं तो हमें कौन सी एक्सपेक्टेशन होती है कि डेफिनेटली वो हमारे पे चढ़ाई करेंगे, हम उसके सामने प्रोटेक्शन करने की ट्राई करेंगे और उसको शॉट करने की ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज होता है, यानी कि काफ़ी अलग हो जाता है, उसके सामने कुछ नया ही नज़ारा सामने आ जाता है कि जिसमें जर्मन सोल्जर्स जो अपने जगह पे छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आते हैं और एकदम लाउडली बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, ऐसा बोलते हैं वहाँ से वो। और उन लोगों के पास में कोई भी तरह के वो सब के सब अनआर्म्ड थे, यानी कि उसके पास में कोई भी तरह के आर्मामेंट्स नहीं थे, यानी कि शूटिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो उसके पास में नहीं थे, यानी कि वो अनआर्म्ड थे, कोई भी तरह के ऐसे हथियार लेके नहीं आए थे। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग क्या कर रहे थे कि वाइट फ्लैग होता है उसको वो वेविंग कर रहे थे, यानी कि ऐसे फहरा रहे थे, लहरा रहे थे। सो द ब्रिटिश सोल्जर्स, वो भी कैप्टन जिम मैकफर्सन जो था वो उसको लीड करके वहाँ पे लेके जाता है, यानी कि कैप्टन जिम मैकफर्सन जैसे ही ये जर्मन सोल्जर को ऐसे देखता है वाइट फ्लैग फहराते हुए, तो ये जिम मैकफर्सन भी ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने साथ में लीड करके लेके चला जाता है वहाँ से। और वो सब के सब एक दूसरे की राह देख रहे थे, यानी कि ईगर थे कि कब ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाए एक दूसरे के साथ में। Now here your question answer, it's about 4 to 5 sentences. So here you will have to write the answer of this question in 4 to 5 lines. So first question is, do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. सो आप क्या सोच रहे हो कि ये जो दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को लाइक करते थे या तो एक दूसरे से अलग थे? तो आपको ये स्टोरी में से ऐसा कोई एविडेंस लेना है या तो एविडेंस ऐसा ढूंढना है कि जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज, दे लव पीस एंड हेट वॉर, दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। Then they were calling out to us from across no man's land,
Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. So, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत ही तरीके से एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो पीस जो होती है यानी कि शांति होती है उसको लव करते हैं, और डेफिनेटली वॉर होता है उसको नफरत करते हैं। वो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग के नेचर के तौर पे एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि ये जो स्टोरी है उसके अंदर से ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे दोनों साइड के जो सोल्जर्स होते हैं वो उसमें से एक जर्मन सोल्जर बाहर आता है और एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नॉमेंस लैंड, यानी कि ये जो नॉमेंस लैंड में से ये जो बात बताई गई है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ऐसे करके एक दूसरे को वो विशिश करते हैं। और जब इन लोगों की ये जो सरप्राइज होती है वो जब दोनों ऑब्वियसली आर्मी में है तो दोनों को ऐसा ही होता है कि एक कंट्री के जो सोल्जर्स है वो दूसरे कंट्री के सोल्जर्स पे अटैक करेंगे, बट यहाँ पे उन लोगों को सरप्राइज मिलती है कि सामने के पार्टी के जो सोल्जर्स है वो उसके ऊपर चढ़ाई करने की जगह पे वो ऐसे हैप्पी क्रिसमस ऐसा विश करते हैं। और सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, और उसमें से ही दूसरे पार्टी के जो सोल्जर्स होते हैं वो रिटर्न उसको विश करते हैं कि सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, ऐसा रिप्लाई करते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन इन दिस चैप्टर दैट इज सपोर्टेड टू आवर आंसर। Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. So ऐसे कई सारे यहाँ पे थिंग्स दी गई है जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स कैसे फ्रेंड्स बने उसको सपोर्ट करती है या तो उसके फेवर में है, जो क्रिसमस पे कॉमन थी। सो द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू अ डिफरेंट कैंप्स. They were enemies and fighting a war, but after all, they were human beings and therefore they had similar feelings. They shared the festive spirit of Christmas. They got over hatred and played games, feasted and drank like good friends. Both hated war, both were anxious to go back to their families at the end of war. सो द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स दोनों के दोनों डिफरेंट कैंप से बिलोंग कर रहे थे, अपोजिट पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे, दुश्मन थे, और वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते थे। बट आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग नेचर होने के नाते पे दोनों के अंदर फीलिंग तो सेम ही थे, भले ही वो एनिमी थे। सो दोनों साइड से वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ में ये जो क्रिसमस के फेस्टिवल की जो उत्साह था उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और वहाँ पे उसकी जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो जाती है, और वो सब के सब गेम प्ले करते हैं, काफ़ी सारी फिस्टेड यानी कि मेज़बानी यानी कि काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, जैसे कि वो अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों के दोनों वॉर को नफरत करते थे। वो लोग चिंता में भी थे, चिंता तो एंग्सियस भी थे कि जैसे उसको वॉर ख़त्म होने पे उसके फैमिली पे के पास वो वापस जा भी पाएंगे या नहीं, इसको लेके ये दोनों साइड के जो आर्मीज़ थे वो चिंता में थे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एकदम स्ट्रेंज इंसिडेंट हो गया उन लोगों के साथ में। तो दोनों आर्मीज़ है वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पे मिलजुल के एंजॉय करते हैं क्रिसमस को। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक फॉर एनी अदर टाइटल्स? क्या आप सोचते हो कि ये जो स्टोरी का टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड दैट इज सुटेबल फॉर दिस स्टोरी, और क्या आपको लगता है कि इसको दूसरा टाइटल हम कोई दे सकते हैं? सो डिसाइडली द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल. For the old Connie, no other present could have given such joy as the coming home of Jim, her husband. So definitely हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो टाइटल है स्टोरी का वो बहुत सूटेबल है। क्यों? बिकॉज ओल्ड लेडी जो है कोनी वो कई सारे सालों से अपने हस्बैंड जिम मैकफर्सन की राह देख रही थी, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेजेंट उसका जो हस्बैंड था जिम मैकफर्सन, उसका घर पे वापस लौटना, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है। सो उसके अंदर से यानी कि अपने हस्बैंड के वापस लौटने का आनंद जो उसको मिलता है घर पे वापस लौटने का, उससे बड़ी और कोई भी प्रेजेंट उसके लिए नहीं हो सकती है। और यू नो वेरी वेल दैट
माय डियर स्टूडेंट्स कि जब कॉनी है वो वहाँ पे नर्सिंग होम में थी तब राइटर उसको मिलने जाते हैं और उसको एक लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो कॉनी की मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि राइटर है उसमें उसको अपना हस्बैंड नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कई सारे सालों बाद जिम मैकफर्सन मुझे मिलने आया है और मेरे पास घर पे वापस लौट आया था। तो उसमें से उसको हैप्पीनेस मिलती है कि मेरी सबसे बड़ी क्रिसमस प्रेजेंट है वो मेरा हस्बैंड है कि जो आज वापस घर पे लौट आया है। Her pre-assumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. Since the story revolves around Christmas, the alternate title of the story could be War and Peace of Christmas Gift. But neither can be a match to the present title. और यू नो वेरी वेल दैट कि ये जो कोनी थी उसका ये प्री एजम्पशन था वो माइट बी रॉन्ग था। यस डेफिनेटली, बिकॉज उसको ऑथर मिलने के लिए गए थे, बट फिर भी उसको ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस है वो क्रिसमस के दिन पे मिलती है। और ये स्टोरी का जो टाइटल है वो अल्टरनेटिवली हम वॉर एंड पीस ऐसा भी दे सकते हैं या तो क्रिसमस गिफ्ट ऐसा भी दे सकते हैं, बट शायद ये टाइटल इतना मैच नहीं करेगा कि जितना ये प्रेजेंट टाइटल द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो अभी दिया गया है टाइटल ऑथर ने, उससे गुना और कोई भी अच्छा टाइटल नहीं हो सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ऑथर्स मीटिंग विथ कॉनी। सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन, fourth number question is Connie or Mrs. Macpherson was 101 years old when the author took Jim's letter to her in a nursing home. She became very excited. Her eyes lit up and she mistook the author for her husband. She kissed his cheek. She said that she had been reading his letter every day, but she wanted to hear her voice. She had made a Christmas cake also for him as he had promised to come back home. She thought that he came back home. She called his presence at home as the best Christmas present for her in the world. सो कॉनी और मिसेस मैकफर्सन जो थी वो 101 ईयर्स की ओल्ड लेडी थी। जब ऑथर है वो जिम का लेटर उसके पास में नर्सिंग होम में लेके जाते हैं तब वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, यानी कि कई सारे सालों से वो अपने हस्बैंड का राह देख रही थी तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसकी आंखें ऐसे नमी सी हो जाती हैं और बाय मिस्टेक वो ऑथर को अपना हस्बैंड मान बैठती है और वो बहुत ही वार्मली उसके साथ में पेश आती है और वो ऐसा भी कहती है कि ये लेटर है वो उसको शी हैड बिन रीडिंग हिज लेटर एवरी डे, वो अपने हस्बैंड का लेटर यानी कि ये लेटर जो है उसको वो हर दिन उसको पढ़ा करती थी। बट अभी ये जो लेटर है वो अपने हस्बैंड की वॉइस में वो सुनना चाहती थी, तो वो क्या करती है वो उसको बताती है, वो ऑथर को ही अपना हस्बैंड मान बैठती है और बताती है कि मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है और आपने पता है मुझे प्रॉमिस किया था कि आप घर पे वापस लौटोगे। सो ये ऐसा सोचती है कि आज उसका हस्बैंड है वो वापस घर पे लौट आया है। सो शी कॉल्ड हिज प्रेजेंस एट होम एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड। वो क्या बताती है कि क्रिसमस की सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए आप ही हो वर्ल्ड की। सो नाउ हियर व्हाट हैड हैपन टू मिसेस मैकफर्सन, डिस्क्राइब्ड हर कंडीशन। मिसिस मैकफर्सन है उसको क्या हुआ था उसकी कंडीशन डिस्क्राइब करनी है। मिसिस मैकफर्सन lived alone after her husband Jim Macpherson went to join the British Army during the First World War. So she spent many lovely years after the war. One day her house caught fire, but she was saved by the firemen. From then on she had been in nursing home. She had grown extremely old and couldn't walk on herself and her life got confined to a wheelchair. मिसिस मैकफर्सन है वो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहती थी बट वो अकेली रहती थी एंड उसका जो हस्बैंड है वो उसने ब्रिटिश आर्मी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। और ये जो कॉनी है मिसिस मैकफर्सन वो काफ़ी सारा लंबा समय वॉर के बाद में अकेली व्यतीत करती है। वन डे ऐसा होता है कि उसका जो हाउस होता है वो आग की वजह से जल जाता है,
बट वो क्या करती हैं कि वो फायरमैन है, उसकी वजह से वो बच जाती हैं। उसके बाद में वो नर्सिंग होम में थी, कॉनी है वो, एंड वो बहुत ही काफ़ी सारे इयर्स बीतने की वजह से, यानी कि उसकी उम्र है वो काफ़ी गुना लंबी हो गई थी, 101 इयर्स की वो ओल्ड हो गई थी, एंड वो अपने आप से चल पाए ऐसी कैपेबिलिटी में नहीं थी, यानी कि फिजिकली इतनी फिट नहीं थी ड्यू टू हर एज। एंड उसकी लाइफ है वो अभी भी व्हील चेयर पे थी, यानी कि वो अभी अपना जो भी समय व्यतीत करती थी उसको वो व्हील चेयर पे ही टाइम स्पेंड करती थी। सो हियर योर एक्सरसाइज इज ओवर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।